Hi there, I'm Ashish Tyagi. I'm welcoming you to your own channel, Ram Tutorial, where we are going to study today about the class 10th of science about how do organisms reproduce. Okay, so shall we start? Okay, I'm going to teach you through the book of the NCERT book of class 10th, right? And I'm going to tell you the pages and what's going on at a particular page. Okay, so at page number, I think it's 198. Now I'm sorry, it's about 128, and page number 128 there we are teaching you about how do the reproduction happens and what is actually reproduction. So reproduction is basically multiplication of organisms, right? Is a multiplication of organism and making a copy of its own species, right? When one species try to make a copy of itself, like so to stop to escape the extinction, that is called as reproduction, right? Okay, there are two types of reproductions: asexual reproductions and sexual reproductions. Okay, asexual reproduction is broadly you can say that in which seeds are not involved, right? There is only no sexual activity is going on, right? Only one partner is going to make itself relevant to create its own copy, right? Sexual reproduction is where two species are involved, right? Okay, moving on to there are different kind of, usually there are 4 to 5 kind of asexual reproduction, starting off with fission. What is fission? Fission is a binary division. It's a binary division of a single cell, right? It can be a binary, or it can be multicellular division, right? It's a asexual reproduction, right? When fission results in two daughter cells copy, right? You get two equivalent daughter cells. That is called as binary reproduction, right? Binary asexual reproduction. When we get multiple copies of a cell, that is called as multiple fission, right? Moving on to the second type of asexual reproduction is budding, right? Budding usually happens in hydra, right? Here we get a little bit of small edge of development on a species, right? On a hydra, you get a little bit development of little hydra developing to the corner of the hydra, right? Okay. So usually the bud is being connected to the parent, and eventually the bud is being eventually connected to the parent until unless it's fully developed. Then a little cross-sectional way it gets cut away, right? Okay, moving on to regeneration and fragmentation. Okay, this is very important. And what is regeneration? Regeneration होता है कि आपने कोई भी अपना organ काट दिया, right? जैसे छिपकली होती है, like a lizard loses its tail, right? Okay, now its tail grows back. That is called as regeneration. आपने Spider-Man वाली मूवी देखी है ना, where there is one scientist who loses his arm and regeneration, and he tried to regenerate his arm, and eventually he get into a crocodile, right? That is what is happening in regeneration, right? Fragmentation is a process by which an organism fragment into smaller pieces. It's dividing itself into smaller pieces, right? And it is usually done through the dead. The fragmentation is done through the dead. कि एक ने आपका organism है वो काट दिया गया है और वो अलग हो गया. Now you have to get a new species of that organism from the dead ones, right? That is called as fragmentation. Moving on to स्पोर फॉर्मेशन ये कहाँ पर होता है? ये आपके स्पोर फॉर्मेशन इसमें होता ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक बर्ड बन जाता है, एंड द बर्ड इज एक्सप्लोडेड, राइट? तो उससे होता यह है कि एयर थ्रू एयर और वाटर इट्स
copies its daughter cells, they get transferred. ठीक है ना? तो ये स्पोर सेल के थ्रू आपका ईस्ट होता है ना, ईस्ट डेवलप थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन. मूविंग ऑन टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? When you see a big into evergreen forest, right? जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, you don't get you get a competition of for the sunlight amongst the trees, right? There are big canopies. बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, और उन्हीं पत्तों पर होता ही है कि एक स्मॉल छोटा सा पेड़ जो है वो निकल आता है, and it starts to grow on the leaves itself, right? तो उसमें होता ही है कि then when the leaf get detached with the stem, तो eventually it falls down and वो जो छोटा plant है और वो soil तक पहुंच जाता है and it starts to grow up, right? So that is what is called as vegetative propagations. जैसे for example आपका potato है, potato you have seen the eye of the potato, तो exactly वैसे ही होता है. Now we have completed the page 128, 129, 123 and so on, right? So अभी we are on page 133 of NCERT, जहाँ पर we are going to tell you about the sexual reproduction. तो type of ये होता है कि first of all कि cell division कैसा होता है. Cell divisions are of two types: prokaryotic divisions and eukaryotic divisions. Mitosis, it takes place at some in places in somatic cells. Somatic cells कौन सा होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा सोमैटिक सेल्स कौन सा होता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं. ठीक है ना? एंड इट मेंटेन्स अ क्रोमोसोम्स नंबर, यानी क्रोमोसोम्स जो आपके जो डीएनए की जो कॉपीज रखता है ना क्रोमोसोम्स में, सो इट हैज द डीएनए सेल, तो वो क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम्स की कॉपी रखता है, क्रोमोसोम्स की कॉपी रखता है. वो यहाँ पर माइटोसिस में ये देखता है कि माइटोसिस में कितना नंबर चल रहा है. अगर आपका एक्स क्रोमोसोम है एंड एक्स यूजुअली 23 पेयर्स होते हैं. ठीक है, 22 पेयर्स एक जैसे होते हैं. 20 तो सिंगल जो 23rd पेयर होता है वो डिफरेंट होता है इन ह्यूमंस. आई एम टेलिंग अबाउट द ह्यूमंस, राइट? तो उसमें होता है जब एक्स क्रोमोसोम्स मिल जाता है बेबी गर्ल होता है, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम मिल जाता है तो बेबी बॉय होता है. ठीक है, तो यहाँ पर माइटोसिस में बताया गया है कि माइटोसिस में होता क्या है. ये होता है इट रिक्वायर्स एसेक्सुअल प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स एंड, ठीक है ना, इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गलत थोड़ा आ गया है. मेयोसिस में क्या होता है? व्हाट इज मेयोसिस? सो इट टेक्स प्लेस इन सेक्स सेल्स, जहां पर आपका जो वो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, जो आपका जाइगोट बनता है वहां पर ये आता है और ये क्रोमोसोम्स दो बीच में भागों में बढ़ जाते हैं. जैसे ह्यूमंस में 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो 11 के सेट में बढ़ जाते हैं, राइट? और आपका जो 23rd क्रोमोसोम है वो डिसाइड करता है द सेक्स ऑफ द. चलिए मूविंग ऑन टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है टेस्टिस. टेस्टिस में क्या होता है? यहाँ पर आपका सीमन बनता है, राइट? आपका जो वो जो सीमन होता है वो बनता है एंड यहाँ पर जो आपका जो सीमन होता है वो बनता है इन टेस्टोस्टेरोन्स, राइट? सॉरी, दे आर द हार्मोन्स व्हिच हेल्प्स द टेस्टिस टू जनरेट द सीमन, जो कैरी करता है आपके स्पर्म्स. सॉरी, सो स्पर्म्स कहाँ डेवलप होते हैं? सीमन में गलत बोल गया. स्पर्म्स आपके बेसिकली स्पर्म्स डेवलप होते हैं टेस्टिस में और आगे जाके दो जगह आपका वो लिक्विड बन जाता है. तो लिक्विड जो आपका जो लिक्विड सप्लाई होती है, जो आपका प्रोस्टैटिक सेल्स वो होता है ना, प्रोस्टैटिक ग्लैंड सेल बोल गया मैं, तो प्रोस्टैटिक ग्लैंड होता है, वहां पर आपको मिक्सचर होता है, जो आप लिक्विड मिक्सचर होता है. तो लिक्विड मिक्सचर प्रोस्टैटिक ग्लैंड पर होता है और एक जो ट्यूब होती है वो जो लेकर जाती है आपके सीमन को, जिसको हम बोलते हैं वेस डिफरनेस. तो वेस डिफरनेस जो है ये भी आपकी ये यहाँ से क्या होता है, ये वेस डिफरनेस जो ट्यूब होती है ये यहाँ टेस्टिस से आपके
स्पर्म्स को ले जाते हैं, यहाँ पर लिक्विड मिक्स होता है और थोड़ा सा जो लिक्विड है उससे हमारा जो हमारा लिक्विड वेस्ट डिफरेंस में आपका बनता है, प्लस योर स्पर्म्स मिक्स सीमन, राइट। तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने क्या बनाया, यहाँ पर टेस्टिस में आपका स्पर्म्स बनाए जो कि आपके ओवा या एग के साथ फ्यूजन होगा एंड देन एक जाइगोट बनेगा जो कि डेवलप हो जाएगा एक बेबी में, ठीक है ना। तो इसके मेन ऑर्गन्स क्या क्या हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन इन मेल। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्टिस है जहां पर आपका वो बन रहा है, राइट, क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बन रहा है। तो स्पर्म्स आपके टेस्टिस में बने, फिर वेस्ट डिफरेंस आपको लेके गया उन स्पर्म्स को और वो प्रोस्टैटिक ग्लैंड तक लेके जाता है जहां पर अगेन वो लिक्विड में ऐड करता है प्रोस्टैटिक ग्लैंड और वो आपका जो है ना यूथ्रस, जो नली आ रही है आपकी किडनी से भी जो नली आ रही है ना यूथ्रस, उसको एक होती है आपकी यूरिन पास करने की और एक होती है आपके सीमन को पास करने की। तो दो नलियां इवेंचुअली आपस में ही ये आपके जो पेनिस होता है उससे ये दोनों की आउटलेट होती है। तो होता ये है कि जैसे आपका सीमेन बन गया, जो प्रोसेस सीमेन है जिसमें आपके स्पर्म्स मिक्स्ड हैं, पहले तो वास्ट डिफरेंस में मिक्स हुआ, लिक्विड मिक्स हुआ, प्लस उसके बाद प्रोस्टैटिक ग्लैंड में मिक्स हुआ। तो यहाँ पर जब हम प्रोस्टैटिक ग्लैंड में पहुंच जाता है ना सीमन, तो इट गिव्स जो मस्कुलर पावर होती है ना, इट गिव्स यू मस्कुलर पावर फॉर द इजैकुलेशन, जब आपका इजेक्ट होता है। और वो ये डिफाइन करता है प्रोस्टैटिक ग्लैंड में कि वो इतनी पावर से वो इजैकुलेट हो, जो सीमन है वो इतनी पावर से इजैकुलेट हो कि वो इवेंचुअली आपके ओवरी तक पहुंच जाए, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू हाँ, यही सब दे रखा है कि प्रोस्टैटिक ग्लैंड में क्या है, सीमन कैसे लिक्विड मिक्स हो जाते हैं और ये आपके स्पर्म्स को नरिश करते हैं, मतलब उसमें तैरने का एक मीडियम देते हैं कि आपके स्पर्म्स तैरते हैं। और यूरेथ्रा ये आपकी वो नली है जो आपकी यूरिन से आ रही है और यहाँ पर जाके कंबाइन हो जाती है वेस्ट डिफरेंस में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर चलिए फर्दर हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहली तो बात होती है कि 28 साइकिल का एक वो होता है, एक पीरियड होता है जिसमें एक वुमन एक एग को डेवलप करती है, 2 ओवरी होती हैं। तो दो ओवरी होती हैं उनमें से एक ही ओवरी एक टाइम पर एक एग डेवलप करती है, ठीक है ना। और एग डेवलप करने के बाद वो आपका 2 चीजें और आपको समझनी है, यूटेरस एंड वजाइना होता है जहां से एंट्रेंस होती है, आपके पेनिस की एंट्रेंस होती है, ठीक है ना। और वजाइना के ऊपर मैं इसमें पिक्चर नहीं लेकर आ पाया, तो आई एम सो सॉरी। मैं अगर पिक्चर होती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आप you can see here, right, in your NCERT books you can see here कि ये तो आपकी ओवरीज हो गई, ठीक है ना, ओवरी डक्ट में ये दोनों ओवरीज हो गई, ये आपका यूटेरस हो गया जहां पर आपका एग आके रुक जाता है, राइट। और ये हो गया आपका सर्विक्स, राइट, ये देखिए, और ये हो गया आपका वजाइना, राइट, ओके। तो ये आपका पेज नंबर 137 पर है, ये दोनों दे रखे हैं, एक मेल दे रखा है, एक में फीमेल दे रखा है। तो एक ये और समझ लीजिए, आपका फेलोपियन ट्यूब होता है जहां पर आपका जाइगोट का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझाएंगे हम जब हम वी आर गोइंग टू डू इट इन आवर पेड वीडियोस, ठीक है। चलिए, तो मोटे मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि ओवरी एक एग डेवलप करती है, इधर से वजाइना के थ्रू से पेनिस आता है एंड इट इजैकुलेट्स द स्पर्म्स थ्रू इन द फॉर्म ऑफ सीमेन, ठीक है ना। वो सीमेन जाता है और फिलोपियन ट्यूब में वहां पर वेट करता है एग, और वहां पर एग के साथ फ्यूजन हो जाता है फिलोपियन ट्यूब में। किस चीज का फ्यूजन हो जाता है, एक एग का एक ही स्पर्म से फ्यूजन होता है, और जब वो एग फ्यूज हो जाता है, पूरा फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो एग जो है वहां पर डेवलपमेंट करने लगता है एंड इट स्टेज देयर
फिलोपियन ट्यूब में फिर वो थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाता है, फिर यूरेथ्रस में आ जाता है, फिर वहाँ पर प्लांटस एक आपकी और वो होता है, एक अलग से एक आपका ऑर्गन होता है जहाँ पर वो खून मिलता है, उसको ब्लड नरिश करता है, वहाँ पर उसका हार्ट डेवलप होता है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा बेबी बन जाता है। अगर somehow the fusion doesn't happen, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो यही जो फिलोपियन ट्यूब है इसकी जो लाइनिंग है ना, ये हार्ड हो जाती है, एंड इट गेट्स दैट मच हार्डर दैट इट ब्रेक्स द एग, एंड दैट्स व्हाई यू गेट अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट। चलिए, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये आपको मैंने अभी जो मैंने बताया था कि अच्छा, फीमेल्स में एस्ट्रोजेंस होते हैं और आपके मेल्स में टेस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। तो हो सकता है ये आपके थोड़े क्वेश्चंस वगैरह में पूछा जाए कि भाई अभी हाल फिलहाल में बोर्ड इस साल में जो बोर्ड का एग्जाम आया था उसमें जो है क्या पूछा गया था, उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर के बारे में पूछा गया था। कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर भी मैं आपको बता देता हूं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, वुमेन्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, या सर्जिकली होता है कि आपने पेनिस के थ्रू अपना वेस्ट डिफरनेस को ब्लॉक करा दिया, तो ना तो आपका सीमेन इजैक्युलेट होगा, ना आपका फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस हैं, या आपकी ओवरीज निकलवा दी, या आपकी फिलोपियन ट्यूब्स को ही ब्लॉक करा दिया, ठीक है। एक टी कॉपर आती है, वो एक तरह से आपकी ब्लॉकेज करता है, टी जो वो होती है, टी कॉपर टी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और अलग से जो चीजें हैं, एक और मेजर है जिसको हम बोलते हैं कॉन्डम्स। तो कॉन्डम्स एक रबर का चीज होता है, and either male wear it or female also wear it, the condoms, and they don't let the sperms and the ova to get contact. चलिए, अब हम पढ़ते हैं कि फ्लावर यानी प्लांट्स में कैसे होता है। तो प्लांट्स के लिए आप समझिए, पहले तो स्टिग्मा समझिए, स्टिग्मा प्लस आपकी ओवरी ये बनाती है आपकी पिस्टल, ठीक है ना। और यहाँ पर आप ये देखिए पिस्टल, ये स्टिग्मा होता है, ये आपका फीमेल पार्ट होता है, और ये यहाँ पर एक ये ट्यूब गई है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है ना। इसके थ्रू पॉलन ग्रेन नीचे जाता है। एंथर वो चीज है, ये तो आपका हो गया फीमेल पार्ट, दिस पिस्टल, दिस थिंग, दिस इज द फीमेल पार्ट है ना, ठीक है ना, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है ना। ये आपका फीमेल पार्ट है इन अ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब मेल पार्ट, ये मैं वहां बता रहा हूं जहां पर आपका सेम फ्लावर में प्रेजेंटेशन होता है। तो मैं आपको आपसे पूछता हूं, जो हमारे ऑडियंस है उनसे जो ये पूछता हूं कि जो सेम फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, और जब डिफरेंट मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं। चलिए, जो ये आपका मेल पार्ट है, मेल पार्ट जिसको बोलते हैं आपका एंथर और फिलामेंट, ये आपका मेल पार्ट होता है, ये आपका मेल पार्ट होता है, ठीक है। एंथर में यहां पर पॉलन ग्रेन्स होती हैं, ठीक है ना। फिलामेंट ये आपका सपोर्ट देता है, इट सपोर्ट्स द पॉलन ग्रेन जो कि आपकी एंथर पर लगी रहती हैं, ठीक है ना। यहां पर कोई वॉलंटियर आया या तो कोई बी आई या कोई ह्यूमन के थ्रू हुआ, यहां से समहाउ थ्रू द एंथर द पॉलन गेट ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, ठीक है ना। अब स्टिग्मा में आया, इधर नीचे आया, और ये इट रीचेस द ओवरी, यहां पर ये ओवरी में रीच हो गया पॉलन, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये डेवलपमेंट होती है, इसके बहुत सारे वो चलता है, सेल डिवीजन चलता है। तो जो ओव्यूल होती है ना, जो ओव्यूल्स हम बोलते हैं, ओव्यूल्स होते हैं सीड्स को, ठीक है ना बेटा। तो सीड्स जो हैं वो यहाँ, इसके ओव्यूल्स होते हैं, इनको हम सीड्स बोलते हैं, एंड दे स्टार्ट टू गेट डिवाइडेड, ठीक है ना। एक सीड से 2, 5, 6, 7, 8 सीड इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है सेपल। सेपल क्या होता है, सेपल आपको प्रोटेक्टिव वो देता है, कवरिंग देता है। जब फ्लावर एक बर्ड होता है ना, जब फ्लावर एक बर्ड होता है, देन द सेपल गिव्स द प्रोटेक्शन, इट गिव्स द प्रोटेक्शन, ठीक है। पेटल क्या होता है, पेटल वो होता है जो अट्रैक्टिव बनाता है, किसी भी फ्लावर को वो अट्रैक्टिव बनाता है,
ठीक है। और मेरे ख्याल से स्टॉक क्या होता है, ये एक सपोर्ट होता है जो नीचे प्लांट से स्टेम से आपको निकल के आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक चीजें मतलब एक तरह से पूरा आपका एनसीईआरटी का क्लास 10 का जो रिप्रोडक्शन है वो इसी बारे में है, राइट। और आप चैनल से बने रहिए, इस चैनल में बहुत कुछ आने वाला, हम लोग बहुत कुछ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी और अपडेटेशन की हम लोग वेट कर रहे हैं। तो जल्दी बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना प्यार दीजिए इस चैनल को, ठीक है। थैंक यू।